Hello, my dear friends. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be trial of summons cases by magistrate. So what will be the procedure of summons trial before the magistrate? What will be the sections of समन्स ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट वी विल ट्राई टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं समन्स ट्रायल से रिलेटेड, इसके सारे सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। समन्स ट्रायल का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होगा वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Trial of summons cases by magistrate. So the term summons case has been defined in a negative sense under section 2W of CrPC as a case relating to an offense not being a warrant case. So the summons case has been defined in a negative sense, the case which is not a warrant case, that will be a समन्स केस। तो जो केस वारंट केस नहीं होगी वो समन्स केस होगी। ऑन द अदर हैंड अ वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years. So if any offense which is punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term exceeding 2 years, that will comes under the category of warrant case. तो ऐसा ऑफेंस जिसमें 2 साल से ज्यादा पनिशमेंट है वो वारंट केस के डेफिनेशन में आएगा, और ऐसा ऑफेंस जिसमें 2 साल तक पनिशमेंट है वो समन्स केस के डेफिनेशन में आएगा। So generally summons cases are of less serious nature because it relates to those offenses in which the punishment is up to 2 years. तो less serious offense होता है समन्स केस में, ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें 2 साल से कम पनिशमेंट होती है, ऐसे ऑफेंस समन्स केस के डेफिनेशन में आएंगे। So the actual summons case start from section 251, that is substance of accusation to be stated. So when in a summons case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offense of which he is accused shall be stated to him. So whenever in a summons case, if the accused appears before the court of law or if he brought before the court of law, then the particulars of offenses will be stated to that particular accused person. तो जब कभी भी accused summons केस में कोर्ट के सामने खुद अपीयर होगा या उसको लाया जाएगा तो उसको जो भी ऑफेंस उसने किया वो उसके सामने उसको बताया जाएगा कि तूने यही ऑफेंस किया है। And he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. And after stating a charge to the accused person, he shall be asked whether he pleads guilty or claims to be tried. तो जब उसको चार्ज पढ़कर सुनाने के बाद, चार्ज उसको एक्सप्लेन करने के बाद उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुनाह कबूल है या केस चलाया जाए उसके अगेंस्ट में या उसके पास कोई डिफेंस है लेने के लिए। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, लेकिन फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। जैसा सेशन ट्रायल में और वारंट ट्रायल में हमने देखा कि एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में चार्ज फ्रेम होता है। अगर 3 अक्यूज्ड है तो तीनों अक्यूज्ड के अगेंस्ट में अलग अलग चार्ज फ्रेम होता है और वो फॉर्मल चार्ज कहेंगे हम उसको, और उस पर सिग्नेचर भी होगी मैजिस्ट्रेट की एज वेल एज अक्यूज्ड की। बट यहां पर समन्स केस में फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं होगा। अक्यूज्ड को चार्जेस सुनाए जाएंगे कि तूने ऐसे ऐसे ऑफेंस किया और इनफॉर्मल वे में उससे पूछा जाएगा गिल्टी प्लीड है क्या, गुनाह कबूल है क्या, और प्ली ऑफ गिल्ट रिकॉर्ड होगी, प्ली रिकॉर्ड होगी। यहां पर अगर वो कहता है कि गुनाह कबूल नहीं है तो सपोज 3 अक्यूज्ड है तो तीनों अक्यूज्ड की भी एक ही प्ली रिकॉर्ड होगी और उस पर अक्यूज्ड की सिग्नेचर ली जाएगी। फॉर्मल चार्ज फॉर्मेट में फ्रेम नहीं होगा समन्स केस में। Section 252 deals with conviction on plea of guilt. So if the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereon. Suppose if the magistrate asks a question to the accused whether you plead guilty, and if the accused says yes I plead guilty, then on the basis of such plea of guilt magistrate in his discretion pass the order of conviction. तो मैजिस्ट्रेट उससे क्वेश्चन पूछेगा गुनाह कबूल है क्या,
किया और अगर अक्यूज्ड कहता है कि यस मुझे गुनाह कबूल है, तो वो प्ले रिकॉर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट और उस प्ली के बेस पे वो मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन है, वो सजा का ऑर्डर भी सुना सकता है। इफ द अक्यूज्ड एडमिट्स सम or all of the charges alleged by the prosecution but pleads not guilty, the court is bound to proceed according to law by examining the witness of prosecution and defense। तो अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड पे एक से ज्यादा चार्जेस है और उसमें से एक आधे चार्जेस को वो एडमिट करता है और बाकी चार्जेस को वो नॉट गिल्टी बोलता है कि मैं इनोसेंट हूं, तो उस सिचुएशन में कोर्ट पे ये बाइंडिंग है कि कोर्ट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सुनेगा, डिफेंस को सुनेगा और उसके बाद ही कोर्ट प्रॉपर कंक्लूजन पर आएगा। दैट इज डिस्कस इन एम्परर वर्सेस सोमा भाई 1907। नाउ सेक्शन 253 डील्स विद conviction on plea of guilt in absence of accused in PT cases, section 253, where a summons has been issued under section 206 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। तो क्या होगा कि सपोज इफ द कोर्ट इशू अ summons under section 206 and if the accused desires to plead guilty to the charges without appearing before the magistrate, so whatever the charges leveled against the accused in the summons, and if the summons is issued under section 206, the accused can plead guilty without appearing before the magistrate. So under such a circumstances he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। तो अगर सेक्शन 206 में summons इशू होता है accused के अगेंस्ट में और अगर accused कोर्ट में अपीयर हुए बिना अगर गुनाह कबूल करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को एक लेटर ट्रांसमिट करेगा, वो प्ली का गुनाह कबूल है उसका और जो अमाउंट ऑफ फाइन समन्स में मेंशन किया हुआ है वो अमाउंट ऑफ फाइन और प्ली ऑफ गिल्ट दोनों बाय पोस्ट कोर्ट को भेज सकता है वो। Then the magistrate may in his discretion convict the accused in his absence on his plea of guilt and sentence him to pay the fine specified in the summons and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards the fine। तो क्या होगा, तो मैजिस्ट्रेट उसके डिस्क्रिशन है कि वो अक्यूज्ड को वो कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट के बेस पे वो सजा सुना सकता है और जो भी अमाउंट उसने समन्स के साथ भेजा है वो उसके फाइन के अमाउंट के साथ कोर्ट एडजस्ट कर सकता है। और वेयर अ प्लीडर अथोराइज्ड बाय द अक्यूज्ड इन दिस बिहाफ प्लीड्स गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, और अगर अक्यूज्ड अपने एडवोकेट को अथोराइज्ड करता है, उसको अथॉरिटी लेटर देता है गुनाह कबूल करने का उसके बिहाफ से, अक्यूज्ड कह रहा है कि मेरे बिहाफ से मेरा वकील गुनाह कबूल करेगा, अगर ऐसी अथॉरिटी अक्यूज्ड देता है तो उस सिचुएशन में द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द प्लीडर एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम एज अफोरसेड। तो अगर वकील अगर गुनाह कबूल कर रहा है अक्यूज्ड की तरफ से तो मैजिस्ट्रेट वो प्ली को रिकॉर्ड करेगा और कन्विक्शन का ऑर्डर पास करेगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल फाइन का ऑर्डर पास करेगा और वो अमाउंट जो अक्यूज्ड ने भेजा है वो उसके फाइन के अमाउंट में एडजस्ट करेगा कोर्ट। सेक्शन 253 प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 253 पे, फॉर कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट अंडर सेक्शन 253 ऑफ CrPC द पीटी ऑफेंस मींस offense punishable with fine not exceeding 200 rupees, offense punishable with fine not exceeding 500 rupees, offense punishable with fine not exceeding 1000 rupees, offense punishable with fine not exceeding 200 rupees। तो यहाँ पर सेक्शन 206 ये कहता है कि अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन समन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। तो करेक्ट आंसर इज सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1000 रुपीज जिस ऑफेंस में फाइन का प्रोविजन है ऐसे ऑफेंस को पीटी ऑफेंस के डेफिनेशन में लाया गया है। नाउ सेक्शन 254 इज देयर procedure when not convicted। if the magistrate does not convict the accused under section 252 or section 253, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all evidences as may be produced in support of the prosecution। Suppose if the accused has not been convicted under section 252 and 253, then the magistrate will issue a summons to the prosecution witness and hear all the prosecution witness। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 252 और 253 में अगर अक्यूज्ड को सजा नहीं होती है तो सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के विटनेस को समन्स भेजेगा, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, उनका एग्जामिनेशन होगा,
पूरे एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन के कोर्ट एग्जामाइन करेगा सेक्शन 254 में। एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज्ड एंड टेक ऑल सच एविडेंसेस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस। प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद अक्यूज्ड को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अक्यूज्ड के विटनेस आएंगे, अक्यूज्ड के विटनेस आने के बाद उनका भी एग्जामिनेशन होगा। इशू समन्स टू विटनेसेस, तो अक्यूज्ड क्या कहेगा, अक्यूज्ड एक एप्लीकेशन करेगा कि मेरे ये विटनेस है, इनको समन्स इशू किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट उन विटनेसेस को समन्स इशू करेगा। एंड बिफोर समनिंग विटनेसेस अमाउंट डिपॉजिटेड, तो जब कभी भी मैजिस्ट्रेट डिफेंस के विटनेस को समन्स इशू करेगा उसके पहले मैजिस्ट्रेट कंफर्म करेगा कि अक्यूज्ड ने विटनेस के जो विटनेस का जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल कि विटनेस को आने जाने का जो खर्चा है वो डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, ये मैजिस्ट्रेट कंफर्म करेगा। अगर अक्यूज्ड डिपॉजिट करता है तभी मैजिस्ट्रेट समन्स इशू करेगा, अदरवाइज not. Section 254. Now section 255 is there, acquittal or conviction. If the magistrate after considering evidence finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. तो पूरे evidences सुनने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अक्यूज ने कोई गुनाह नहीं किया तो एक्विटल का ऑर्डर पास करेगा, बाइज्जत बरी कर देगा अक्यूज्ड को। एंड वेयर द मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360, he shall if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law. और अगर पूरे एविडेंसेस को सुनने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है और अगर वो प्रोबेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, सेक्शन 360 में वो प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते उसको, तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड के अगेंस्ट में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास करेगा, सजा का ऑर्डर पास करेगा accused के अगेंस्ट में। Now section 256 is there, non appearance or death of complainant. So if the summons has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused, the complainant does not appear, तो कंप्लेन करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लेंट किया और जो डेट में फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड का अपीयरेंस डिसाइड होने वाला है, अक्यूज्ड को एक नोटिस गई, अक्यूज्ड वो डेट में आना है, अगर वो डेट में अगर मैं कंप्लेनेंट अगर प्रेजेंट नहीं रहता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट शैल एक्विट द अक्यूज्ड अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजर्न द हियरिंग ऑफ द केस टू सम अदर डे। तो क्या होगा, मैंने कंप्लेंट किया, अक्यूज प्रेजेंट है, अगर मैं प्रेजेंट नहीं रहता हूं उस पर्टिकुलर डेट में तो मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को एक्विट भी कर सकता है, उसको बाइज्जत बरी कर सकता है, या तो मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि एडजर्न करना चाहिए 1-2-4 दिन के लिए फॉर एग्जांपल, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट को ऐसा प्रॉपर लगता है तो मैजिस्ट्रेट एडजर्न भी कर सकता है या डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ एक्विटल भी पास कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेडर और बाय द ऑफिसर conducting the prosecution or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. For example, complainant present नहीं रहता है, उसके बदले उसका प्लीडर या प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट रहता है, तो उस सिचुएशन में अगर मैजिस्ट्रेट का ऐसा ओपिनियन है कि ठीक है इस सिचुएशन में हम कंप्लेनेंट की अटेंडेंस को छूट दे सकते हैं, उसका प्लेडर प्रेजेंट है और उसके प्लेडर के प्रेजेंसी में अगर हम आगे जा सकते हैं ऐसा मैजिस्ट्रेट को लगता है, तो उस सिचुएशन में कंप्लेनेंट अगर प्रेजेंट नहीं भी रहा तो वो प्रेजेंट उसकी कोई माने, उसकी एब्सेंसी कोई माने नहीं रखेगी, उसके प्लेडर के प्रेजेंसी में केस मैजिस्ट्रेट चला सकता है। The provision of subsection 1 shall, so far as may be, apply also to cases where the non-appearance of the complainant is due to his death. तो जो subsection 1 का provision है, अगर for example accused present नहीं रहता, sorry complainant अगर present नहीं रहता है, non-appearance है complainant का और अगर उसके death के वजह से भी non-appearance है, तब भी subsection 1 के provision applicable होंगे। मैजिस्ट्रेट उस सिचुएशन में भी उसकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर सकता है फॉर एग्जांपल और अक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है। सेक्शन 256 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है, इफ द कंप्लेनेंट रिमेन्स एब्सेंट ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, एक्विट द अक्यूज्ड, कंटिन्यू द प्रोसीडिंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैजिस्ट्रेट शैल एक्विट द अक्यूज्ड, मैजिस्ट्रेट एक्विट करेगा अक्यूज्ड को, एंड इन एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में भी वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकता है। 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, if the complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused,
The magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused when against whom the complainant is so withdrawn. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्लेनेंट अगर चाहता है कि ऑर्डर फाइनल ऑर्डर पास होने के पहले अगर कंप्लेनेंट कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड है और मुझे परमिशन दी जाए कंप्लेन को विड्रॉ करने की, जो कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो कंप्लेन किया है वो कंप्लेन को विड्रॉ करने की मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड है, और अगर वो मैजिस्ट्रेट को परमिशन मांगता है विड्रॉ करने की तो मैजिस्ट्रेट उसको परमिशन देता है, परमिशन दे सकता है कंप्लेंट विड्रॉ करने की। एंड शैल देयरअपॉन एक्विट द अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज सो विड्रॉन। और अगर कंप्लेंट विड्रॉ होती है तो मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को एक्विटल का ऑर्डर पास करेगा, अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी करेगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है, complainant can withdraw complaint under section 257 of CrPC as of right after permission of magistrate, both of the above, none of the above। तो हमने देखा कि आफ्टर परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ कंप्लेनेंट अपने कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है सेक्शन 257 में। Now section 258, power to stop proceeding in certain cases in any summons case instituted otherwise than upon complaint. A magistrate of the first class or with the previous sanction of chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may, for reason to be recorded by him, stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment। तो summons case है और अगर वो complaint पर इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट से अलग अगर कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है मैजिस्ट्रेट का, और उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी या सीजेएम के परमिशन से कोई और मैजिस्ट्रेट भी या कोई और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अगर उसके पास प्रॉपर रीजन है तो वो रीजन शो करके, वो रीजन रिकॉर्ड कर प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है एट एनी टाइम, एट एनी स्टेज, विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट। तो जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं करेगा और वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है मैजिस्ट्रेट अगर उसके पास सफिशिएंट रीजन है तो। एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेसेस हैज बीन रिकॉर्डेड, प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ एक्विटल। और अगर वो मैजिस्ट्रेट विटनेस को, जो एकदम इंपॉर्टेंट विटनेस जो है, जो प्रिंसिपल विटनेस है, उसका एग्जामिनेशन होने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग को स्टॉप करता है तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जजमेंट ऑफ एक्विटल पास करेगा, यानी मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी करेगा। एंड इन एनी अदर केस रिलीज द अक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। और फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल विटनेस को एग्जामाइन करने के पहले अगर प्रोसीडिंग स्टॉप करता है मैजिस्ट्रेट तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड के अगेंस्ट में ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पास होगा। प्रिंसिपल विटनेस को एग्जामाइन करने के बाद अगर प्रोसीडिंग स्टॉप होती है तो एक्विटल का जजमेंट पास होगा। प्रिंसिपल विटनेस को एग्जामाइन करने के पहले अगर अक्यूज्ड को रिलीज होता है तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पास करेगा मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 259, पावर ऑफ कोर्ट to convert summons cases into warrant cases when in the course of a trial of summons case relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months। तो फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रायल ऑफ समन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। तो फॉर एग्जाम्पल समन्स केस चल रही है और ऐसे ऑफेंस की समन्स केस चल रही है जिसमें पनिशमेंट 6 महीने से ज्यादा है और ट्रायल चल रहा है समन्स केस। इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल ऑफ वारंट केस। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है समन्स केस चलाते हुए ट्रायल के दौरान कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि ये केस वारंट केस की तरह चलनी चाहिए, उस तरह से चलनी चाहिए, तो सच मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू रीहियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस एंड मे रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामाइंड। तो उस सिचुएशन में अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि समन्स केस है, 6 महीने से ज्यादा सजा है और इसको वारंट केस के तरह सुनना चाहिए, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि केस को रीहियर करेगा, वापिस से सुनेगा एज अ वारंट केस, और कुछ विटनेस जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन उनका हो चुका है उनको वापस से वो कॉल कर सकता है और वारंट केस के तरह से उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो सकता है। तो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल ऑफ समन्स केसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।